Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start your class 12th history, chapter 10, colonialism and the countryside, exploring officials archive. My dear student, in this chapter we had discussed the introduction of this chapter where we read that how East India Company established himself, how East India Company Raj established himself in India as a ruler, and which type of rules, law, and policy was implemented, and which step he taken to collect revenue, what was Jamindari system, and auction of Bardhaman, Bengal and Jamidars their problem. In this topic, we discuss the the auction in Bardhaman and what happened with Rajas and what happened with the the those people who directly connected with the land or farming. My dear, in the auction of Bardhaman, we had clearly known that it was totally fake auction. Why? Because I taught you when collector discovered I mean to say, when collector tried to know the what is the actual problem, is the Jamindari, yeah, was Jamindari was auctioned really? We find out that over 95% of Jamindari which was sold which at the auction was fictitious. The Raja estate had been publicly sold but remained in control of Jamindari. My dear, this is a very strange matter. ये जमींदारी नीलाम तो होती थी लेकिन राजा उसे अपने हाथ से निकलने नहीं देता था। यहाँ पे जमींदारों को क्या प्रॉब्लम्स थी? जमींदारों के अधिकार उनसे छीन लिए गए, उनसे उनकी सेना छीन ली गई, उनकी कचहरी छीन ली गई, उनसे कलेक्शन के जो करने के राइट्स हैं छीन लिए गए, न्याय अधिकार उनसे ले लिए गए। इस तरह से जमींदारों के कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम भी थे और इन पर्सनल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जमींदार रियली अपने उस कंडीशन में थे कि वो प्रॉपर रेवेन्यू कलेक्ट ना कर पाए और जब कलेक्ट नहीं हो पाएगा तो वो जमा नहीं कर पाएंगे। हमने एक वर्ड और पढ़ा था, जमींदार, तालुकदार, गांडीदार, हवलदार, इन सारे शब्द को भी हमने एक्सप्लेन किया था। आई वाज एक्सप्लेन ऑल दीज टर्म इन योर प्रीवियस वीडियो। व्हेन यू विल वॉच माय प्रीवियस वीडियो, you can easily understand that what is the meaning of Haldar, what is the meaning of Gantidar, what is the meaning of Talukdar. And the point 1.3, why Jamidars defaulted on payment? It was also discussed by me. My dear, there were the different reasons. First reason is that demand rate was very high. Second reason that was this high demand was imposed in the 1790s, the time when the price was agricultural produce were depressed. Third point is that the law which was implemented in Jamindari system that was totally against. The fourth, the payments, the permanent settlements initially limited the power of the Jamindar to collect rent from the Rayyat and manage his Jamindari. My dear, if you will read the problem which was faced by जमींदार, no doubt to say that कि कुछ तो कमियां थी लेकिन कुछ जमींदार भी शैतानी कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने जो फिक्स रेट which revenue rate was fixed by Britishers, that was match the Mughal revenues। 3,75,00,000 रुपए फिक्स की गई थी, बढ़ा के नहीं किया गया था। लेकिन जमींदार एक्चुअल में वसूल कितना करते थे? वसूली का काम जमींदार काफ़ी ज़्यादा करते थे। आइए एक छोटा सा इतिहास बात करते हैं, किस तरीके से जमींदारी डेवलप हुई, किस तरीके से जमींदारी सिस्टम का विकास हुआ और कैसे क्लाइव के आने के बाद भारत की पूरी व्यवस्था एक नए स्वरूप में आई। माय डियर, क्लाइव 1765 में गवर्नर के रूप में बंगाल वापस आ गया था। उसने तय किया कि बंगाल की सत्ता प्राप्त करने का मौका हथिया लेना चाहिए और धीरे धीरे नवाब से कंपनी को सरकार के अधिकार हस्तांतरित किए जाने चाहिए। मतलब अब नवाब के पास ज़्यादातर अधिकार ना रहो और वो कंपनी के पास आ जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाए। अंग्रेजों ने 1763 में मीर जाफर को मीर कासिम की जगह एक बार फिर से नवाब बना दिया।
मीर जाफर ने उसे कंपनी तथा उसके बीच उच्च अधिकारियों के लिए भारी रकम वसूल की गई। मीर जाफर को जब दोबारा गद्दी दी गई तो मीर जाफर से उससे काफ़ी कीमत वसूल की गई। मीर जाफर की मौत के बाद उन्होंने उसके दूसरे बेटे निजामुद्दौला को गद्दी पर बैठाया और पुरस्कार स्वरूप उसे 20 फरवरी 1765 को एक नई संधि पर दस्तखत करा लिया। इस संधि के अनुसार, इस ट्रीटी के अनुसार नवाब को अपनी अधिकांश सेना विघटित कर देनी थी और बंगाल का शासन एक नायब सूबेदार के जरिए करना था, जिसे कंपनी नामजद करती और उसे कंपनी की मंजूरी के बिना बर्खास्त नहीं किया जा सकता था। इट मीन्स नवाब के पावर को रिड्यूस किया गया। मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसके बेटे निजामुद्दौला से 1765 में ट्रीटी, और ट्रीटी में यह कहना कि अब एक डिप्टी नवाब भी बनेगा जिसको आप बर्खास्त नहीं कर सकते बिना कंपनी के परमिशन के। समझौता कर लिया गया क्योंकि निजामुद्दौला कमजोर था। इस संधि के अनुसार निजाम को अपनी सेना भी समाप्त करनी थी और फिर कंपनी धीरे धीरे अपने को मजबूत स्थिति में स्थापित करने आई थी। इस प्रकार कंपनी ने बंगाल के निजामत, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। कंपनी की बंगाल काउंसिल के सदस्य ने फिर एक बार नए नवाब से लगभग 15 लाख रुपए वसूल कर लिए। निजामुद्दौला को नवाब बनाने के एवज में 15 लाख वसूल किए गए। शाह आलम द्वितीय से, जो कि मुगल सम्राट थे, जो उस समय तक मुगल साम्राज्य का नाममात्र प्रधान था, कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी या राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इस तरह बंगाल पर उसके अधिकार को कानूनी बना दिया गया और भारत के सबसे समृद्ध प्रांत के राजस्व उसके हाथ में सौंप दिए गए। बदले में कंपनी ने बादशाह को 26 लाख रुपए देने का वचन दिया। इसके अलावा उसे कड़ा और इलाहाबाद जिले दे दिए गए। बादशाह इलाहाबाद के किले में 6 सालों तक वसुधा अंग्रेज के कैदी के रूप में रहा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये इलाहाबाद की संधि की बात कर रहा है। आई विल एक्सप्लेन अगेन दीज संधि according to fact, but I am summarize this whole story. If you listen carefully, then you can easily understand the consequences of the Britishers, how they capture, how they क्या हजम किया भारत की रियासतों को, भारत की सरकार को, भारत के नवाबों के क्षेत्रों को। शाह आलम से उन्होंने 26 लाख रुपए देने का वचन दिया और फिर उन्हें इलाहाबाद के किले में रहने के लिए मजबूर कर दिया। एक तरीके से नवाब के बाद शाह आलम द्वितीय, जो मुगल सम्राट थे, वो भी अंग्रेजों के कैदी के रूप में किले में रहने के लिए हेल्पलेस थे। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को मजबूर कर दिया गया कि यह कंपनी की लड़ाई के कारण हुए नुकसान के लिए हर्जाने के तौर पे 50 लाख रुपए दे। इसके अलावा कंपनी और नवाब ने एक संधि पर दस्तखत किए जिसके अनुसार कंपनी ने बाहरी आक्रमण पर नवाब को सहायता देने का वचन दिया, मगर शर्त यह थी कि नवाब कंपनी के सैनिकों की सेवाओं के लिए भुगतान करे। रेजिडेंशियल सिस्टम याद रखिए, यहाँ पे अंग्रेज नवाब से कह रहे हैं कि यदि आपके ऊपर कोई हमला होगा तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप हमारे सैनिकों को अपने यहाँ रख लीजिए और उनका पूरा खर्च आप उठाइए। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आई होप यू हैव रीड द रेजिडेंट सिस्टम। When we were completing your whole syllabus, when we discussed your chapter Rebellions and Raj, in that chapter we discussed the resident system. तो this is the resident system, कि जहाँ वो कह रहा है कि सैनिकों की सेवाओं का आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। इस संधि ने नवाब को कंपनी पर आश्रित कर दिया, डिपेंड कर दिया। अब नवाब की डिपेंडेंसी कंप्लीटली कंपनी की सेनाओं के ऊपर थी। नवाब ने संधि का इस गलत धारणा का कारण स्वागत किया कि मूलतः व्यापारी संस्था होने के कारण वह अल्पकालिक शक्ति है और मराठे तथा अफगान ही उसके असली दुश्मन है। नवाब यहाँ पे पूरी तरीके से धोखा खा गया। वो सोचता था कि कंपनी है, कम समय तक रहेगी, फिर यहाँ से चली जाएगी। हमारे असली दुश्मन तो अफगान के लोग हैं, हमारे असली दुश्मन तो जो मराठे हैं वो है। लेकिन वास्तविकता इससे ठीक अलग थी। कंपनी ने अपने पैर को मजबूती से भारत में स्थापित कर लिया। अवध और शेष भारत के लिए यह गलती बहुत महंगी पड़ी। दूसरी ओर अंग्रेजों ने
बंगाल में प्राप्त अपने अधिकारों को और सुदृढ़ बनाने के और उसे बीच अवध को अपने इलाकों और मराठों के बीच प्रतिरोधक राज्य के रूप में इस्तेमाल करने की बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया। अब यहीं से 1765 वो समय था जब बंगाल में द्वैत शासन डुअल एडमिनिस्ट्रेशन लागू कर दिया गया। बंगाल का असली मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। उसकी फौज का बंगाल की रक्षा का पूरा पूरा नियंत्रण उसके हाथ में आ गया। सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता उसने अपने हाथों में इनडायरेक्टली ले ली। नवाब अपनी अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों पर पूरी तरीके से अब डिपेंड था। दीवान के रूप में कंपनी बंगाल के राजस्व को सीधे वसूल करती थी और नायब सूबेदार को नामजद करने का अधिकार कंपनी के पास आ चुका था। निजामत एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जुडिशरी भी ब्रिटिश शासन ने अपने हाथों में ले लिया था। जैसा कि मैंने आपको जमींदारों के प्रॉब्लम के बारे में जब चर्चा की तो हमने कहा था कि जमींदारों की प्रॉब्लम क्या थे, तो मैंने कहा था जमींदारों की कुछ अपनी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि उनसे उनके न्यायिक अधिकार छीन लिए गए थे, जैसे उनकी ट्रूप्स उनसे हटा दी गई थी, जैसे उनको महलों में रहने के जो अधिकार थे उनको खत्म कर दिए गए थे। तो ऐसे ही अब जब नवाब बंगाल का पूरी तरीके से ब्रिटिश आर्मी पे डिपेंड है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये कैसे चाहेगी कि जमींदारों के पास छोटी ट्रूप्स हो, क्यों चाहेगी कि वो उनके लिए खतरा बने। इसलिए जमींदारों से उनकी फौज को भी समाप्त करा दिया गया। अब यहाँ पे ये व्यवस्था इतिहास की द्वंद्वात्मक या दोहरी सरकार के नाम से जानी जाती है, क्योंकि पैसा रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार किसका था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे ले रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन शांति व्यवस्था बनाने का काम किसका था? वो नवाब के ऊपर डाल दिया गया था। कहने का सेंस ये है कि ये व्यवस्था इतिहास में द्वंद्वात्मक या दोहरी सरकार के नाम से जानी जाती है। इसमें अंग्रेजों का बड़ा फायदा था। उन्हें जिम्मेदारी के बिना सत्ता प्राप्त थी। प्रांत के वित्त और फौज पर उनका सीधा तथा प्रशासन के ऊपर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। नवाब और उसके अफसरों पर प्रशासन की जिम्मेदारी थी, मगर उनका पूरा काम करने के लिए उनके पास शक्ति नहीं थी। मतलब नवाब भले ही ये कहे कि एडमिनिस्ट्रेशन मैं देख रहा हूँ, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास थी? जिसके पास सेना थी। सेना किसकी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। तो नवाब ये कह के भी कि ये सत्ता मेरे हाथ में है, लेकिन उसके हाथ में नहीं थी, बल्कि वो अंग्रेजों के हाथ में थी। अब यहाँ से पूरा का पूरा सिनेरियो बंगाल का बदलता है। पूरी तरीके से अब अंग्रेज बंगाल का शोषण और एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देते हैं। नवाब और उसके अफसरों पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी, लेकिन उनके पास शक्ति नहीं थी। सरकार की कमजोरियों के लिए दोष हिंदुस्तानियों के मत्थे बढ़ाया जाता था इसलिए, और उसका फायदा अंग्रेज उठाते थे। बंगाल की जनता के लिए इसके परिणाम बड़े ही विपरीत हुए। न तो कंपनी ने और न ही नवाब ने उनकी भलाई की चिंता की, बंगाल के लोगों की चिंता की। बंगाल के लोगों कैसे हैं, बंगाल के लोगों के ऊपर क्या हो रहा है, इसकी चिंता न कंपनी को थी और न ही नवाब को थी। कंपनी को इसलिए नहीं थी क्योंकि कंपनी अधिक से अधिक शोषण करके अपना पेट, अपना खजाना भरना चाहती थी। नवाब को इसलिए नहीं थी क्योंकि नवाब के पास एक्चुअल पावर ही नहीं थी। किसी भी तरह नवाब के अफसरों को इतनी शक्ति नहीं थी कि वे जनता को, कंपनी, उसके कर्मचारियों को लूट खसोट और लालच से बचा सके। दूसरी ओर वो खुद ही अपने सरकारी अधिकारियों से फायदा उठाने के लिए जल्दबाजी में थे। इस समय सारा बंगाल कंपनी के कर्मचारियों के सामने पड़ा था। जनता के ऊपर उनका अत्याचार बहुत बढ़ गया। हम खुद क्लाइव के कथन से इस बात को समझ सकते हैं। क्लाइव कैसे लिखता है बंगाल की उस कंडीशन को, 1765 को। क्लाइव लिखता है खुद कि मैं केवल यही कहूंगा कि अराजकता, अस्त व्यस्तता, घुसखोरी, भ्रष्टाचार और लूट खसोट का ऐसा दृश्य बंगाल के सिवा किसी अन्य देश में कभी देखा या सुना नहीं गया। न ही इस प्रकार की और बड़ी धनराशि इतने अन्यायपूर्ण और लूट खसोट के तरीके से कभी प्राप्त की गई। जब से मीर जाफर को फिर से सूबेदारी दी गई है, तब से तीनों प्रांत, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जिनसे 30 लाख पाउंड का कुल सकल राजस्व प्राप्त होता है, कंपनी के कर्मचारियों के पूर्ण प्रबंध में ही, और उन्होंने गैर सैनिक और सैनिक दोनों प्रकार के कर्मचारियों ने, हर प्रभावशाली और महत्वपूर्ण व्यक्ति, नवाब से लेकर सभी छोटे जमींदार तक से कंपनी के लोगों ने पैसे वसूल किए, पैसे ऐंठे। मतलब खुद जो बंगाल का गवर्नर है क्लाइव, वो ये बात लिख रहा है। वो कह रहा है कि किस तरीके से बंगाल को लूटा जा रहा है। कंपनी के अधिकारियों ने भी जोरदार ढंग से धन जमा करना शुरू किया, अपने खूब प्रॉपर्टी बनाई।
बंगाल में जो भी अंग्रेज आता था, चाहे वो किसी रूप में हो, क्लर्क से लेके बड़े अफसर तक, वो ब्रिटेन लौटने के बाद, लंदन लौटने के बाद जमींदार बन जाता था, एक अच्छी प्रॉपर्टी लंदन में बना लेता था। यहाँ से पूरा का पूरा सिनेरियो ब्रिटेन में भी ऐसे लोगों के प्रति लोगों के मन में घृणा उत्पन्न हुई। आपके सिलेबस में नहीं है पिट इंडिया एक्ट 1784, अदरवाइज मैं उस पर डिस्कस करता, तो वहां पे स्पेशली इसीलिए लाया ही गया। और फिर 1784 के बाद वारेन हेस्टिंग्स का शासन खत्म होता है और एक नया गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस अपॉइंट किया जाता है। कॉर्नवालिस को ये कह के भेजा जाता है कि आप जाकर के वहाँ पे व्यवस्था को सुदृढ़ करिए, मजबूत करिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कंपनी के अधिकारियों ने भी जो जोरदार ढंग से धन जमा कराना तथा बंगाल ने उसकी संपदा को जो चूसना आरंभ किया था, लेना आरंभ किया था, हड़पना आरंभ किया था, उन्होंने भारतीय माल को खरीदने के लिए ब्रिटेन मुद्रा राशि भेजनी बंद कर दी। पहले ब्रिटेन से पैसे मंगाए जाते थे भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए, अब ब्रिटेन से पैसे मंगाने बंद कर दिए गए। भारत के पैसे को लूट के, भारत की वस्तुएं खरीद के, भारत की वस्तुओं को सस्ते में खरीद के ब्रिटेन भेजा गया और ब्रिटेन में उस पर अच्छी आमदनी प्राप्त की गई। वे इस माल को बंगाल के राजस्व से खरीदने तब बाहर ले जाकर बेचने लगे। उनको कंपनी का निवल इन्वेस्टमेंट कहा जाता था और वे मुनाफे में शामिल किए जाते थे। इन सब के साथ साथ ब्रिटिश सरकार ने इस जोरदार लूट में भी अपना हिस्सा मांगा। 1767 में उसने कंपनी को हुक्म दिया कि वह उसे 4 लाख पाउंड हर साल दे। 1767, that was the time, first time British government forced company that you have to pay at least 4 लाख पाउंड पर ईयर। केवल 1766, 1767 और 1768 में ही 57 लाख पाउंड की रकम बंगाल से ले जाई गई। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन में द्वंद्वात्मक सरकार की बुराइयों और संपदा के अपक्षय ने उस अभागे प्रांत बंगाल को दरिद्र बना दिया। 1717 में बंगाल में अकाल पड़ा, जो अपने परिणामों के लिहाज से मानव इतिहास के ज्ञात सबसे भयंकर अकालों में एक था। 1/3 जनसंख्या अकाल के गाल में समा गई। अकाल में लाखों आदमी मर गए। बंगाल की लगभग एक बड़ी जनसंख्या नष्ट हो गई। यद्यपि अकाल बारिश न होने के कारण था, तथापि उसके परिणामों को कंपनी की नीतियों ने और भयंकर बना दिया। कंपनी ने पूरा का पूरा राजस्व वसूल किया। जब आप क्लाइव की इस पूरे कार्यकाल को देखेंगे तो यहाँ पे इसीलिए के.एम. पडिक्कर जैसे लोग कहते हैं कि क्लाइव का समय, क्लाइव का काल लूट का काल था। हम इसके बाद इस टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे और वारेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस के समय बंगाल में क्या हुआ और किस तरीके से वहाँ पे लैंड सेटलमेंट्स आई, उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम इनके बाद की जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक हमारा है कि जमींदार क्यों, द राइज ऑफ द जोतदार। ये जोतदार कौन थे और जोतदार का क्यों उदय हुआ, ये जमींदारों के लिए कैसे प्रॉब्लम हुई है। इवन इट वॉज डिस्कस बाय मी। द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट विच वी विल रीड बाय नेक्स्ट वीडियो, दैट इज द जमींदार रेसिस। जमींदार क्यों पेमेंट देने के लिए विरोध करते थे, इन चीज़ों को हम फिर से एक बार देखेंगे और वहाँ पे हम इन चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले वारेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस के अधीन बंगाल की स्थिति थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थोड़ी देख ही लेते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है। कहते हैं जब वारेन हेस्टिंग्स 1772 टू 1785 के बीच बंगाल का गवर्नर जनरल था, 1772 टू 1785 के बीच, ध्यान रखिएगा। और कॉर्नवालिस 1786 टू 1793 तक बंगाल का गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग्स 1772 टू 1785, 72 टू 85, एक लंबा समय, 13 साल, 13 ईयर्स। और फिर कॉर्नवालिस 1786 टू 1793, 86 टू 93, 7 ईयर्स, एक 13 ईयर्स, दूसरा 7 ईयर्स। बंगाल का गवर्नर, 20 सालों का कार्यकाल वारेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस के हाथों में थी। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उसे यह अधिकार दिया गया कि उसे बंगाल में प्रशासन स्थापित करने की पूरी छूट दी जा रही। वो एक एजेंट के रूप में शासन करेगा। वारेन हेस्टिंग्स भारत का, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ है कि वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था जिसने ये काम किया।
ईस्ट इंडिया कंपनी 1772 का एक महत्वपूर्ण भारतीय शक्ति बन गई थी। इंग्लैंड स्थित इसके निदेशक तथा भारत स्थित उसके अधिकारियों ने जीत कर नया सिलसिला शुरू किया। पहले बंगाल के ऊपर अपना नियंत्रण सुदृढ़ करना आरंभ किया, मगर भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की आदत और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी लैंड प्राप्त कर लेने का लोभ अंग्रेजों को कई सारे युद्धों में फंसा दिया। निजाम हैदराबाद ने उत्तरी सरकार को अंग्रेजों को दे दी। इसके बदले उन्होंने उसे मैसूर के हैदर अली के खिलाफ आक्रमण में उसका साथ देने के लिए गठबंधन किया, मगर हैदर अली की ताकत कंपनी और सैन्य शक्तियों से अधिक थी। ब्रिटिश हमले की सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद उसने 1769 में मद्रास पर हमला करके या मद्रास पर उसने हमला करने की धमकी दी, थ्रेटेन किया। अभी हम बात कर रहे हैं कर्नाटका वार की, फिर उसके बाद आंग्ल मैसूर वार की। अभी ये आंग्ल मैसूर 1748 से शुरू होता है और 1799 तक चलता है। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध दिल्ली किस्मत समाप्त हो रहा है। कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पूरा श्रीरंगपट्टनम अपने अधिकार में ले रहा है। पहले और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को सफलता नहीं मिल रही और अंग्रेज हार भी रहे जगह। पहली बार अंग्रेज भारत में हारे थे किसी भारतीय शक्ति से, और वो था हैदर अली। 1769 में मद्रास पर हमला करके उसने मद्रास पर हमला करने की धमकी दी। इस प्रकार कंपनी को अपने शर्तों पर शांति और संधि करने के लिए उसने मजबूर कर दिया। मद्रास की संधि हुई 1769। दोनों पक्षों ने दूसरे के जीते इलाके वापस कर दिए और एक दूसरे पे हमला न करने, और यदि तीसरा पक्ष उन पर हमला करेगा तो सहायता देने की बात भी कही। मगर जब मराठों ने 1771 में हैदर अली पर आक्रमण किया, तब अंग्रेजों ने अपना जो प्रॉमिस था उसको पूरा नहीं किया। उन्होंने हैदर अली की सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने हैदर अली की सहायता नहीं की। इस कारण हैदर अली उन पर अविश्वास करने लगा। हैदर अली अंग्रेजों को नापसंद करने लगा। इसके बाद 1775 अंग्रेज मराठों से टकराए। उसमें मराठों के बीच सत्ता के लिए तीव्र संघर्ष चल रहा था। एक ओर जो शिशु पेशवा था, माधवराव द्वितीय के समर्थक थे, इसका नेतृत्व नाना फडणवीस कर रहे थे। दूसरी ओर रघुनाथ राव के पक्षधर थे। बंबई स्थित ब्रिटिश अधिकारियों ने इस संघर्ष से फायदा उठाने के लिए रघुनाथ राव की ओर से हस्तक्षेप करने का फैसला किया। इस प्रकार उन्होंने मद्रास और बंगाल में देशवासियों ने जिस कारनामों को दिखाया था, उन्हीं को दोहराने का परिणाम स्वरूप मौद्रिक फायदे के लिए उन्होंने बंबई में भी फायदा उठाने की बात सोची। इससे भी मराठों के साथ एक लंबी लड़ाई में फंस गए। 1775 टू 1782 तक चली ये लड़ाई में अंग्रेजों को ये सबक दे दिया कि भारत में एक मजबूत शक्ति से लड़ने के पहले छोटी छोटी शक्तियों को पहले मिलाना जरूरी है। पहले निजाम को खत्म करें, पहले निजाम को खत्म करें, हैदर अली को समाप्त करें, और फिर जब ताकतवर हो जाएं तब मराठों के अगेंस्ट कार्रवाई करें। 1780। सो माय डियर, इस प्रकार 20 सालों के लंबे अंतराल के बाद अंग्रेजों ने फिर छोटी शक्तियों के बाद मराठों के ऊपर हमला किया। लेकिन 1782 सालवाई की संधि, मराठों का अपने पक्ष में मिलाना, और इसके बीच 20 इयर्स में कर्नाटक, मैसूर और साउथ की कुछ रियासतें, बंगाल पूरे को जब उन्होंने अपने को मजबूत कर लिया इन क्षेत्रों में, तब उन्होंने मराठों के ऊपर अपना अंतिम वार किया। तो ये चीज़ें हैं। कल हम फिर इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।